तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आते हैं। यहाँ पे फोर्स लग रही है 2F, यहाँ लग रही है F, और यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस पे जाता हूँ तो जो लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज गिवन एज Cx, C इज सम कांस्टेंट। ओके, तो फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। तो टोटल लेंथ क्या L है? टोटल लेंथ इज L। तो इसमें x के टर्म के साथ डिफरेंशियल टर्म भी आ रहा है। तुमने एलिमेंट लिया क्या dx? हाँ, हमें सिर्फ मास निकालना है, मतलब टेंशन के लिए एलिमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मास के लिए जरूरत है। मतलब मास निकाल लो x हाँ लेंथ हाँ है। हाँ, समझा। हाँ, फिर इसका t इक्वल टू F/m इंटू Cx²/2 प्लस प्लस F। f। अच्छा, इसमें लिमिट्स L डाल देंगे, ठीक है, वही ना? ठीक है, देखते हैं। तो लेट्स सी। अथर्व आया तुम्हारा, अंकित? हाँ सर मेरा ऐसा आ रहा है, मतलब टोटल वही आ रहा है बेसिकली। मैंने बस टोटल एम को CL²/2 सब्सटीट्यूट किया। हाँ, ओके ओके। अंकित? Yes, thinking. I don't remember how to do this. See, take a length dx over here, correct? So dm mass will be lambda dx, so that is Cx dx. So mass of length x will be how much? Integration. Integration dm, so that will be integration Cx dx. So it will be Cx²/2. Limits are 0 to x, correct? And total mass is how much? Cl²/2. Okay. Now acceleration will be 2F minus F is the net force divided by total mass. Okay. And then we draw the section x of the block of the rod. So this length will be x. Here we have tension T, here we have F backwards. So T minus F equal to mx into A. So T minus F is equal to Cx², right, by 2. Into A is what?
f by cl square by 2. Okay, so t will be f plus fx square by l square. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। यहाँ पे f1, यहाँ पे f2। फाइंड पॉइंट वेयर टेंशन इज 0। यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ है, मास m। So I think same method. Total acceleration will be f1 plus f2 by m. राइट। So f2l by f1 plus f2. 12 by f2l by f1 plus f2 लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से। हाँ। ओके, सर मेरा f1l by f2 plus f1 आ रहा है। कहाँ वो से? राइट लेफ्ट से या हैंड राइट से से? है। तुम्हारा अच्छा राइट से आया सॉरी होगा। सॉरी सॉरी ओके, कहीं से भी करो, जस्ट मतलब वो मेंशन करना जरूरी है, लेफ्ट से या राइट से। तो अगर हम x लेफ्ट से ले रहे हैं तो जो वो ब्लॉक बनेगा x लेंथ का, यहाँ पे टेंशन 0 है, यहाँ पे f2 लग रहा है, तो f2 इक्वल टू mx बाय l इंटू a होगा, है ना। सो दैट इज इक्वल टू m बाय l। a कितना है? f1 प्लस f2 बाय m इंटू x। सो m कट जाएगा, सो f2l बाय f1 प्लस f2। ठीक है। तो ये हो गया। देन सूडो फोर्स हमें बेसिक्स पता ही है, ठीक है। अपरेंट ग्रेविटी भी याद रहेगा सबको। अपरेंट ग्रेविटी इज g डैश इक्वल टू g वेक्टर माइनस a वेक्टर, वेयर a वेक्टर इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। एंड इफ a वेक्टर इज कांस्टेंट तभी हम उसको लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते, राइट। तो इस पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हियर वी हैव अ कार्ट। यहाँ पर एक बोल्ट या जो भी बोल दो थीटा एंगल पे। सो इनिशियली चलो, कार्ट इज sliding down the incline freely, ठीक है। A bolt drops from its roof. Find trajectory of bolt with respect to cart with respect to ground. So with respect to ground, it will just be straight line, right? If Downward. initial velocity was 0, Yeah, if it was 0, otherwise it will be Yeah. parabola. curved kind of. Parabolic. हाँ. So here we can just write down straight line or parabola. So wedge fixed है ना? हाँ, wedge is fixed.
I think with respect to cart also it will be a straight line, like perpendicular to the floor of Direction. the cart, like Correct. perpendicular to the wedge. Good. With respect to cart, g dash is what? G vector minus a vector. So that is what? G vector minus g sin theta vector. Correct. Hmm. This is your g dash g vector. And when you remove g sin theta, this is your minus g sin theta vector. So you're left with only g cos theta. So g dash will be g cos theta. So with respect to cart, it will follow a straight line path perpendicular to the incline. Okay. Then any other special question? Just let me see once. Yes. Two m spring constant k. Find elongation in spring. No vibrations. So by any chance is it 3 mg by k? 3 mg by k. So 4 Probably mg not. by 3, 4 mg by 3k. 4 mg by 3k. Okay. Acceleration कितना होगा? Acceleration g by 3. यहाँ से फोर्स लग रही है 2 mg, यहाँ लग रही है mg. So A will be 2 mg minus mg divided by 3m. Correct? Along the length, we are comparing the forces. इधर 2 mg नीचे आ रहा है, इधर mg आ रहा है. So this is your acceleration, and this is what? G by 3. Now we have to find tension. So T minus mg equal to ma, that is mg by 3. So T will be 4 mg by 3. So x will be T by k. So 4 mg by 3k. Okay. किसी को डाउट इसमें? सर अगर हमने ऐसे किया, समझिए कि लेट्स स्ट्रेटन आउट द रोप, मतलब पुलिस को निकाल देते हैं, एंड लेट्स से कि ऐसी सिस्टम है कि एक मास m है, स्प्रिंग है, फिर एक मास 2m है, एंड देयर इज 2 mg फोर्स ऑन 2m मास एंड mg फोर्स ऑन m मास. तो ये सिस्टम से अगर हमने देखा, इफ वी सी फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट, इफ लेट्स से इनिशियल कंडीशंस में ये जीरो था, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो था, सब रेस्ट पे था, और स्प्रिंग नॉन इलोंगेटेड थी. तो फिर अगर हमने m के रिस्पेक्ट में देखा, तो देयर विल बी 3 mg नेट फोर्स कंसिडरिंग pseudo force. Yeah, and exactly. 3 mg force होना चाहिए, right? Because initial acceleration of the mass will be g only. The spring will not have any tension in the beginning. See, How will the spring if have tension? that's what I'm saying. If the spring has no tension in the beginning, then this will become a oscillating system. सर भाई, बट अगर हमने इसको इक्विलिब्रियम में निकाला,
then there will be no vibration मतलब ये ना इक्विलिब्रियम we expand it स्टेडी slowly. स्टेट बोला, स्टेडी स्टेट बोला, हाँ मतलब हेलो ऑलरेडी स्प्रिंग में ऑलरेडी इलोंगेशन है इतना कि वो वाइब्रेट नहीं करेगी. अगर इनिशियल टेंशन इसके बराबर नहीं होगा तो फॉर एनी सिचुएशन द स्प्रिंग विल ऑसिलेट, फॉर एनी सिचुएशन. अगर स्प्रिंग में इनिशियली ये टेंशन है, ये इलोंगेशन है, तो वाइब्रेशन जीरो होंगे. डायरेक्टली दोनों ब्लॉक्स के पास ये एक्सेलरेशन होगा, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं है. ओके जो तुम लोग बोल रहे हो द कंफ्यूजन दैट यू आर हैविंग दैट इज रिलेटेड टू एसएचएम, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ऐड किया नो वाइब्रेशंस. ओके So, but in Clear हुआ अंकित? this case, initial acceleration should be right, because like I understand the SHM thing, but how will it have tension from before? That means it's already stretched. I already stretched it by that amount and then released the system. Okay, I am using my doesn't hands really to make move these blocks. No, I arranged the blocks. I was holding the blocks and I stretched the spring until I got this elongation and then I released the blocks. So in that situation the blocks will have same acceleration upward and downward. Acha, so you've already stretched it and kept it. Yeah. That's what I'm saying. If you don't give initial elongation up to this much, then there will be vibrations for oscillate. sure. Always vibrate. Okay. Hmm. You could simply think about a rubber band, hang a block on the rubber band. The rubber band is unstretched. And as soon as you release the block, initially the block has the acceleration g, but then the block will oscillate for some time. Right? So we are avoiding those oscillations. Okay. Okay. Yes, this question. All surfaces smooth. सर वो ब्लॉक के अंदर क्या है, मतलब स्प्रिंग वगैरह है क्या कोई? नहीं वो बस स्मॉल एम मास लिखा था. अच्छा ओके. सर और वो ऊपर का ब्लॉक नीचे के ब्लॉक से कांटेक्ट में है या नहीं? कांटेक्ट में है. सर ऊपर वाले ब्लॉक का एफ ओवर स्मॉल एम और नीचे वाले ब्लॉक का 0 होगा क्या? करेक्ट. समीर, अंकित और कौन है? केयूर है क्या या ओम है? So पर नीचे वाले का 0 कैसे So होगा? your screen. या देखो
जब भी पुली किसी मूविंग ब्लॉक से अटैच हो ना, पुली को अलग मत किया करो, साथ में ही रखो। तो यहाँ पे एफ लगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ। बताओ नेट फोर्स कितनी हुई ब्लॉक पे? 0. 0 हो गई, राइट? Wait, but don't we have to? Oh wait, there's no friction or anything. क्लियर? सर ये एफ इसलिए लगाया ना क्योंकि रोप मासलेस है और उसका एक्सेलरेशन नहीं है. हाँ, नहीं, रोप का एक्सेलरेशन हो सकता है बट रोप मासलेस है। हाँ, रोप मासलेस है इसलिए फोर्स बैलेंस रहता है. हाँ, रोप मासलेस और पुली आइडियल, तो इस केस हाँ. में दोनों तरफ एफ लगेगा। ठीक है. फिर स्प्रिंग कट होने वाले तो प्रॉब्लम याद है सबको, हो जाते हैं वो। जैसे किसी के यहाँ बारिश हो रही है क्या? No, not mine. ओके, ये M1, ये M2, ये K2, तो इनिशियली सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, find accelerations after K1 is cut. If K1 is cut, then M2 ka there will be no acceleration because there's a spring, right? Initially. Yep. And M1 ka I'm not very sure. I think MG रहेगा, so there'll be G का acceleration. No. सर M2 का 0 रहेगा और शायद M1 का M2 माइनस M1G रहेगा. Direction? Why M2 minus M1? अपवर्ड्स. Okay. FBD बनाओ अंकित। Oh, right. K2 के वजह से there'll be. So I got समीर? it. हाँ सर वही है. ऊपर Yeah, I M2G, got it. नीचे M1G. So if we say acceleration is upwards, then we write M2 minus M1 into G by M1. And if acceleration is, we are saying downwards, then we will write M1 minus M2 into G by M1. Okay. We frame the answer according to the direction that we take. Fine. Okay. And now which question is that? Just a question, then we will move on to constraints. यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, ओके, both have same mass. This is applied 2F, this is F. Find contact force between blocks. Okay, they are moving horizontally, all surfaces smooth हैं. Yes, this angle. सर स्प्लिट का एंगल दिया है. हाँ, this angle is theta.
So 3f by 2 sin theta. 3f by 2 sin थीटा, ठीक है। सर मेरा भी वही है। तो यहाँ पे f लग रहा है, यहाँ पे n लग रहा है। सो n sin थीटा माइनस f इक्वल टू f by 2 m एक्सेलरेशन होगा into m, तो m कट जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन विल बी f by 2m into mass, तो n sin थीटा विल बी 3f by 2, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? ठीक, सर मुझे f/2m वाला नहीं समझा। ये 2f लगा, ये f लगा, तो नेट फोर्स कितनी होगी इस डायरेक्शन में? f हाँ ओके सर, और ओके सर समझा। एक्सेलरेशन, ठीक है। और बस एक लास्ट ये बताओ, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वेइंग मशीन है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है। मैन हैज मास m, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इन किलोग्राम। सर MA plus MA. G divided by G। हाँ ma plus g. mg प्लस a बाई। ठीक है, ओके। चलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। और अगर फ्री फॉल में आ जाएगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स पे। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे कौन से होते हैं? एक तो सरफेस कंस्ट्रेंट होता है, दूसरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और तीसरा होता है पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो सरफेस कंस्ट्रेंट में क्या होगा? अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इज सेम, ठीक है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या होता है? वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग इज सेम। कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, ओके। तीसरा तुम्हारा क्या कंडीशन? पुलिस। तो पुलिस का क्या हिसाब बैठेगा? कि यहां से एक रोप पास हो रही है, ठीक। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और पुली की वेलोसिटी v है। तो देन व्हाट डू वी गेट? v इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। ये तीन बेसिक्स सबको पता है। सर V1 माइनस V2 होगा ना, डायरेक्शन देखे तो? सेम है ना, v1 और v2 सेम डायरेक्शन में। मतलब इफ वी लुक फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ पुली, तो फिर द स्ट्रिंग कैन नॉट स्ट्रेच, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट रहना चाहिए नहीं, फिर। पुली के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v1 माइनस v, हाँ और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v2 माइनस v। हाँ, 0 होना चाहिए। अच्छा ओके ओके। दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में 0 हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू पुली, तो वापस ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सर नहीं, V1 माइनस V शुड बी इक्वल टू V2 माइनस V रहना चाहिए था ना? नहीं, इक्वल टू v माइनस v2। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके। डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ओके। हम्म, और दूसरा टेंशन मेथड तो पता ही है, टेंशन से कैसे करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? समेशन ऑफ टी आई वी आई इक्वल टू में 0 कर देना है बस, ओके।
ये फॉर्मूला क्यों आता है? क्योंकि स्ट्रिंग खुद अनस्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल। तो मतलब टोटल वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स कंबाइंड, या फॉर अ गिवन पार्टिकुलर स्ट्रिंग वो 0 होता है, राइट? बिकॉज स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग 0, तो वर्क डन 0 मतलब टेंशन इनटू वेलोसिटी इज पावर, पावर भी 0 हो जाएगा। और एक चीज है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमेशा एंगल कभी रहा तो हमें एंगल के हिसाब से ये कंडीशन लगानी है, ठीक है? टी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर विल बी 0, ठीक है? तो सबसे पहले ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा, तो V1 V2 का रिलेशन क्या होगा? V2 cos theta is equal to V1. करेक्ट। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड लगा सकते हैं, या तो ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो पहले वो वेलोसिटी वाला लगाते हैं। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी v1 है, अलोंग द स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v2 cos थीटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग v1 इक्वल टू v2 cos थीटा होगा। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम। और अगर टेंशन वाइज देखें तो कैसे करेंगे? तो इस पे टेंशन बैकवर्ड्स है, इस पे टेंशन थीटा एंगल पे, राइट? और वेलोसिटी क्या है? इसकी v1 है, इसकी v2। तो ये हम इक्वेशन बनाएंगे समेशन ऑफ टी आई डॉट वी आई 0। तो यहाँ पे टी आई वी आई क्या बनेगा? इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस टी वन वी वन माइनस टी वी वन, और ये दोनों cos थीटा बना रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बचेगा हमें? प्लस टी वी टू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अगेन वी गेट द सेम इक्वेशन v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, ठीक है? राइट। देन क्वेश्चन था we just yes, this is 30 meter per second, this is 20 meter per second, and this is v. This is 37 degree, this is also 37 degrees. Find v. सर 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, देखता क्या मेथड लगाया? टेंशन वाला? हाँ सर, T1 V1 इज इक्वल टू 0। ओके।
हम्म तो समेशन ऑफ टी आई वी ए क्या होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा? 30t इंटू कॉस 37 दैट इज 4/5, है ना? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा हमें? माइनस वी टी इंटू 3/5। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? सेम वैल्यू देगा, तो इसको इंटू 2 कर देते हैं। देन इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा हमें? -20t इंटू 4/5, दिस शुड बी 0। So what do we get? 24 minus 6v/5 minus 16 equal to 0. So 24 minus 16 is 8 equal to 6v/5. So v will be 20/3. क्या बताया तुमने वैल्यू? सर मैंने 20 बोला था, मेरा मिस्टेक हुआ। अच्छा किसी को भी डाउट है इसमें? ठीक है। अभी चलो ये बताओ। एफ फोर्स लगाया, इसका मास 3m 2m m, और यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट ए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए।
सो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन 3m का होगा क्या? 3m के बराबर नहीं, 3m का नहीं उसके बराबर नहीं आएगा। पहले तीनों मासेस का निकाल लो, ए का बाद में सोचना। हाँ, सो वो नहीं, ये क्वेश्चन मेरा डाउट था ही, मैंने ऐसा किया हुआ है। तो अच्छा। पॉइंट उसमें ये पॉइंट ए का ही नहीं आया था मेरे को पहले भी। इसमें ना ये तीनों कॉन्सेप्ट मासेस लगेगा का तो आ तुम्हारा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, सेपरेटली करना पड़ता है ना। तो सो वो ये पुली मासेस और का ये तो पुली आ के, गया, ओके हाँ, मासेस का आ तो जाता है, मासेस का आ पॉइंट गया ए ना। का। और जो ने हाँ। जो पुली कंस्ट्रेंट बताया, ये वाला जो बताया, ये रिलेशन, तो इसको हाँ। लगाओ इन दोनों पुलीज पे। आई थिंक क्योंकि यहाँ पे ये भी है टर्न, तो ये तीनों पुली पे 1 बाय 1 लगाना पड़ेगा, तो वो 3 इक्वेशन अलग से और बनेंगी, देन सॉल्व होगा ये। ओके इस पे F लगा। अब अगर ये स्ट्रिंग में हम टेंशन T बोल दें, तो यहाँ पे 2T लग रहा है पीछे, और यहाँ पे भी T आगे 2T पीछे, इस पे T आगे 2T पीछे, एंड फाइनल 3m पे 3T लग रहा है। ये FBD बन रही। ओके तो इनके एक्सेलरेशन ले लो, इसका एक्सेलरेशन तो पीछे हो जाएगा, ये क्लियर है, पीछे ज़्यादा फोर्स है। A1 A2 A3, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 3T इक्वल टू 3m A3, यानी कि T इक्वल टू MA3। ओके देन इसका क्या बनेगा, 2T माइनस T यानी कि T इक्वल टू M A1। ओके और फाइनली इसके लिए क्या बनेगा, F माइनस 2T, F माइनस 2T इक्वल टू 2M A2। एंड देन हम कंस्ट्रेंट बना, तो कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, 3T इंटू A3, तो T कैंसिल करते हैं, 3A3 प्लस 2A1। अब ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस 2A2 इक्वल टू 0। अरे हाँ, इसका 2 नहीं आएगा, इसका सिर्फ 1 आएगा। 2T इंटू A1 माइनस T इंटू A1, तो सिर्फ A1 बचेगा, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे माइनस A1 होगा। नहीं, इसका मैंने A1 पीछे लिया, आगे हाँ, नहीं अच्छा, लिया। ये सर, ठीक है। हाँ तो A3 कितना है हमारे पास, A3 इज T बाय M, तो 3T बाय M। A1 कितना है, T बाय M माइनस 2 टाइम्स A2 कितना है, F माइनस 2T बाय 2M। तो यहाँ से हमें टेंशन मिल जाएगा, टेंशन मिल गया तो A1 A2 A3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो तुम लोग समझ गए कैसे करना है। अभी मेन जो है पुलिस पे आते हैं। ये पुली 1, यार को नंबर करते हैं, ये 1, ये पुली 2 और ये पुली 3, ठीक है। तो जो पुली 2 है, पुली 1 और पुली 3, फाइन, इन पे टर्मिनल बना देते हैं। ओ इसका पीछे की तरफ था। देन हमारी रोप हो गई। ओके अभी इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ था A1, इसका एक्सेलरेशन इधर है A2, इसका एक्सेलरेशन इधर है A3। ये तुम्हारा पॉइंट A है, इसका एक्सेलरेशन A मान लो, तो इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, ये वाला पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। सर 3m का एक्सेलरेशन जो होगा वही होगा ना? बिल्कुल करेक्ट।
तो इसका A3, तो हम इसी की डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि A प्लस A3/2, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, बट ये तो उल्टा जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे -A1। तो यहाँ से आ गया A1 A3 निकाल लिया, देन A निकल आएगा। ओके, किसी को डाउट इसमें? सर मुझे ये समझा नहीं, वो A3 कैसे आया था नीचे वाले पॉइंट का? हाँ देखो, ये वाला पॉइंट है वो नीचे वाला, हाँ और ये डायरेक्टली 3M से कनेक्टेड है, ओके। तो A3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। और कुछ डाउट So- किसी को? सर ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है। हम्म, मैं उसका आपको एक पिक भेजता हूँ, उसमें वेलोसिटी पूछिए, मतलब थोड़ा अरेंजमेंट अलग है। हाँ सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। एक से मैं आपको पिक भेजता हूँ। भेजो। कौन सा? 16th। 16th। Under the action of force P, constant acceleration of block B is 6 meter per second square upwards for the instant when the velocity of B is 3 meter per second up the incline. Okay. हाँ तो इसमें इसकी B की 3 है स्पीड, तो 3 into 2 should be equal to V into 3। हाँ तो V आ गया 2, है ना? V एक की वेलोसिटी 2 हो गई। अब इसमें क्या पूछा है? C का पूछा है, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है इसमें? देखो नीचे वाला पुली, देखो ये जो नीचे वाला पुली है ना, उसको देखो क्या होगा। तो नीचे वाले पुली में ये तुम्हारा पॉइंट C है, इसकी स्पीड हमें V पता करनी है, ये फिक्स्ड है, ठीक? और वो ब्लॉक A से अटैच है, तो इसकी स्पीड A के बराबर होगी, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी V, इसकी 0, तो V प्लस 0/2 इक्वल टू 2। ओके, तो उसकी अच्छा हाँ ठीक है सर। क्लियर? समझा। ठीक है, तो ये पुली कंस्ट्रेंट्स हो गए मेजर पार्ट। अगला तुम्हारा आता है एक, यस, टेंशन पे एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्रोटो का है, या थर्ड की क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 रिंग हैं, ठीक है, और एक रोप जो है पास हो रही है ऐसे। क्रोटो में जो है रोप यहाँ पे बांध देते हैं ये दूसरी रिंग पे, बट मैं इसको और ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है? अभी ये एंगल दिया है थीटा, इसकी स्पीड दी है v, तो फाइंड स्पीड ऑफ सेकेंड रिंग। सब आइडियल केसेस हैं, स्मूथ है वगैरह। दोनों रिंग से वर्टिकली मूव कर सकती हैं ऑन द रॉड।
So v into 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. ओके, कैसे किया? सर उसकी सेकंड रिंग की वेलोसिटी x ले ली अपवर्ड्स, फिर उसकी वेलोसिटी x ले ली, तो फिर तीनों पार्ट्स में कंस्ट्रेंट लगाया। अच्छा, लेंथ कंस्ट्रेंट लगा के डिफरेंशिएट किया। हाँ, लेंथ कंस्ट्रेंट किया। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को डिफरेंशिएट किया, राइट? तीनों पार्ट्स को मिला के। हाँ, मतलब लेंथ कांस्टेंट है तो 0 कर दिया, ओवरऑल चेंज इन लेंथ 0 कर दिया। ठीक है। तो मतलब v tan square theta by 2 आ रहा है। ओके, अच्छा अंकित केयूर। Yes, सर cos theta minus 1 upon cos theta plus 1 downwards. हाँ, तो सेम आंसर आया मतलब। हाँ, अ, तो मेरा अपवर्ड्स आ रहा है। तो अच्छा, उसने नेगेटिव लिया, cos theta minus 1 हाँ, लिया, मेरा 1 minus cos theta। तो इसको v1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके करने के दो तीन तरीके, एक तो कंस्ट्रेंट मेथड तो हो गया, बट कंस्ट्रेंट थोड़ा सा लेंथी लगता है मेरे को। मतलब शॉर्टेस्ट मेरे को इस केस में लगता है कि टेंशन मेथड से फटाफट हो जाता है। तो बता देता हूँ एक बार, इसमें दो तीन मेथड है, वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो मेथड वन तुम्हारा Work क्या done by है? टेंशन tension is लगा दो, 0, right? Or something. या That one. दैट इज ऑलवेज द इजीएस्ट पार्ट। मतलब यू कैन बी श्योर कि उसे मतलब बिना ज़्यादा टेंशन के, बिना मिस्टेक के आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रही है, यहाँ नीचे लग रही है, इसको ऊपर टेंशन और एक ऊपर टेंशन, ठीक है। एंड वेलोसिटी v इसके नीचे, इसकी v1 ऊपर, ये थीटा है, ये थीटा है। तो अगेन t डॉट v समेशन 0 करना है। तो इसका और इसका क्या होगा? tv1, इसका ये दोनों का क्या होगा? प्लस tv1 cos थीटा। इसका क्या होगा? प्लस tv cos थीटा, ठीक। और इसका क्या आएगा? माइनस tv इक्वल टू 0। तो v1 1 प्लस कॉस थीटा प्लस v cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम वही जो तुम लोगों ने बोला, आंसर आ गया, राइट। मेथड 2 जो है, ये मेथड तो एक तो मेथड 2 तुम्हारा हो गया, ठीक है। मेथड 2 लिख लेते हैं सीधे, लेंथ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट। अब मेथड 3 लगाते हैं, ठीक है। इसमें मैं नहीं जा रहा, बहुत लेंथी लगता है मेरे को, इसलिए स्किप कर रहा हूँ इसे, ठीक। एक और क्या कर सकते हो, स्मॉल टाइम dt में, ये अभी का सिचुएशन है, करेक्ट। अभी स्मॉल टाइम dt में क्या होगा? ये d थीटा नीचे आएगा, ठीक है। इसका कितना होगा? v dt होगा। ओ अच्छा, नहीं, ये भी लंबा ही पड़ेगा, छोड़ो इसको। तो वो लेंथ वाला आसान था बहुत। क्या लिया फिर? कैसे किया था? तो इसका v1 लिया ना, तो हम्म मैंने क्या किया, जो राइट हैंड पे जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ इंक्रीज होगा, करेक्ट, v से। उसका लेंथ इंक्रीज होगा v स्पीड से, और हम्म जो लेफ्ट हैंड वाली स्ट्रिंग है उसका v1 से डिक्रीज होगा, राइट। तो v माइनस v1। हम्म और अब बीच वाले का अलोंग द स्ट्रिंग है v1 cos थीटा और v cos थीटा, बोथ अलोंग द राइट, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हाँ, द स्ट्रिंग, तो तो वो भी उसका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा करेक्ट। है, तो माइनस v1 cos हाँ, थीटा माइनस v cos थीटा। ठीक है, राइट। हाँ, तो उसको लिख लेते हैं फिर, L1 L2 L3। तो हमें क्या मिला? अरे, तो L1 प्लस L2 प्लस L3
कांस्टेंट, तो डी L1 बाई डी टी प्लस डी L2 बाई डी टी प्लस डी L3 बाई डी टी 0 है। तो L1 बाई डी टी क्या होगा, ये लेंथ कम हो रही है तो -v1 आ जाएगा, ठीक है। और ये इंक्रीज हो रही है v की स्पीड से, तो ये आ जाएगा +v, है ना। अब L2 का क्या होगा, ये इधर v1 cos थीटा और इसका इधर होगा v cos थीटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग ये दोनों अंदर आ रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ये डिक्रीज होगी एट द रेट ऑफ, नेगेटिव लगा देंगे, -v1 cos थीटा प्लस v cos थीटा, ठीक है। तो यस, इससे भी आ जाएगा हमारे पास, इससे भी सेम आंसर, गुड। मेथड 3, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ही वो हो गया, मतलब अननेसेसरी है, बट फिर भी एक पता होना चाहिए कैसा है। तो क्या था ये, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ये रेस्ट पे रहेगा, रूफ जो है ऊपर जाएगा v स्पीड से, ये ऊपर जाएगा v प्लस v1 से, ओके। और उसमें भी वही मतलब कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, ठीक। आगे मतलब हाँ, घूम फिर के तो वही कंस्ट्रेंट आ गया, तो हाँ उससे भी यही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब मेथड 3 में फिर मेथड 1 और 2 मिला दो। एक्चुअली क्रोटो में क्या है ना, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो उस केस में सिर्फ ये 2 स्ट्रिंग बची, है ना। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसकी स्पीड v है, अलोंग द स्ट्रिंग इसकी स्पीड क्या होगी, v प्लस v1 cos थीटा हो जाएगी। तो उससे वो थोड़ा क्रोटो में आसान होता है, इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेथड 3 को फिलहाल मतलब जस्ट यहीं पे स्किप कर देते हैं, ठीक। तो ये 2 मेथड मेन इंपॉर्टेंट है, टेंशन मेथड और ये लेंथ कंस्ट्रेंट, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग्स का। अभी सरफेस पे आ जाते हैं, स्ट्रिंग और पुलीज मोस्टली तो हो गए। यस, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, पुली वाला। यहाँ पे मैंने एफ फोर्स लगाया, इसका मास m, इसका 2m और इसका m। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ऑल, पुली और दोनों ब्लॉक्स का। स्ट्रिंग मतलब स्मूथ है स्ट्रिंग। सर पुली कौन से एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? सब पता करना है। सर मतलब वो ऊपर क्या लिखा है फिर एरो में? एफ, फोर्स एफ लग रही है। अच्छा, ओके ओके।
सो पुली का तो F-4mg/4m होगा ना? नहीं, चलो तुम लोग समझदार ही हो, इधर ही बना देते हैं। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टी, पुली पे नीचे टी, mg 2mg, और इस पे और क्या लग रहा है mg, है ना। और इसका एक्सेलरेशन a मानो, इसका a1, इसका a2, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 2a होगा। a1 कितना है, t माइनस mg/m, a2 कितना है, t माइनस 2mg/2m, 2 टाइम्स a कितना है, f माइनस 2t माइनस mg/m, करेक्ट। यहाँ से टेंशन निकल आएगी, फिर a1 a2 और a तीनों निकल आएंगे। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन है, बस एफबीडी बनाओ, कांस्टेंट बनाओ, खत्म। ओके, चलो इसी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, मतलब कर लोगे, अब इसको यहाँ पे और डिस्कस नहीं करते। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सिमेट्रिक ही मान लो। थोड़ी यहाँ पे, ठीक है, ये कनेक्शंस हैं, ठीक है। ऑल पुलीज स्मूथ, ठीक। इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये करना है तुम लोगों को। तो ऊपर के दो पुली, वो तो मास हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मूव तो करेंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक। सर अभी जो रिवीजन हुआ उसका भी आप पीडीएफ भेज सकते हैं ग्रुप पे। हाँ, ये भेज दूंगा मैं पूरा, जो भी पढ़ा रहा हूँ सबके पीडीएफ आएंगे, ठीक है। ओके। ठीक है। एक क्वेश्चन और था, हाँ, मेरे को याद कर दो, थोड़ा कंस्ट्रक्शंस का भूल जाता हूँ हर बार। कैसा था, नहीं ये नहीं था, हाँ यस, तो कौन चैनल था क्या अभी? हाँ सर, सर पहले भी केयूर करके नाम से मैंने ही ज्वाइन करा था। अच्छा अच्छा, ओके। रोप्स वर्टिकल है, ठीक है, समझ जाना, रोप्स वर्टिकल है परफेक्टली। ओह, एक लास्ट वाली रोप गलत बना दी। तो ये है, इसका मास m, इसका मास m, ठीक है। ये मासलेस है और स्मूथ पुलीज है,
ठीक, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पुलीज दैट मूव, ये कर दो। सर ये अब भी करना है क्या? हाँ, ये वाला भी करना है। सर इसमें एम मास वाला पुली तो रोटेट तो करेगा नहीं ना, क्योंकि स्मूथ है तो। स्मूथ है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है कहीं पे। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? जो लंबी वाली स्ट्रिंग है उसमें देखो, अगर मैं यहाँ बोलूँ t है तो यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, तो यहाँ भी t होगा। करेक्ट, इधर भी t, इधर भी t, इधर भी t।
लेकिन क्योंकि ये पुली मासलेस है तो इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 2t माइनस टी शुड बी 0, मतलब क्या मिला, t इक्वल टू 0, करेक्ट। t प्लस टी माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 आ गया। अब सोचो आगे। फिर तो जी होगा ना। नीचे वाले पुली का g है, ऊपर वाले पुली का कितना है? ऊपर वाला मासलेस वाला अब यहाँ तो उसका टेंशन तो में थोड़ी जीरो नहीं रह सकता, टेंशन तो 0 है। नहीं, उसका एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन नहीं है। इसका जी है तो उसका भी जी होगा। नहीं हो सकता है, मतलब मैं कैलकुलेट नहीं किया, बट मतलब गेस मत करो, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ मतलब जैसे इस पुली का जी है तो वही मतलब A1 A2 स्ट्रिंग्स पे लगा दें इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन। हाँ तो कंस्ट्रेंट लगाओ ना, एक सेकंड। पुली वाला कंस्ट्रेंट लगेगा यहाँ पे, दोनों पुली पे अलग अलग। ठीक है, देखो सर एक सेकंड आ गया। सर आ गया। 3G आएगा क्या? 3G, अच्छा हाँ मतलब देखते हैं। लेंथ से किया, अच्छा लेंथ ऑफ लॉन्गर मुझे रोप अब इज पता नहीं, फाउंड। आंसर देखना पड़ेगा। सर आंसर जी आ रहा है। जी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ओके, तो दोनों पुली एक बार बना लेते हैं वापस से। तो ये हमारा m मास वाला पुली है, ठीक, और हमारे इनके 3 टर्मिनल्स बनेंगे। ओके, तो ये तो जा रहा है नीचे जी से, ये नीचे जा रहा है जी से, ठीक है। अब ये जो पुली है, अगर ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो देखो ये रोप पूरी सिंगल कनेक्टेड है ना। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगी, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा। ये रोप इस मास से कनेक्टेड है ना, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स होगा। अब बच्चा ये वाला पॉइंट, तो इसका एक्सेलरेशन a1 ले लो, ठीक है। a1 की वैल्यू हमें नहीं पता अभी फिलहाल। तो देखो अननोन कितने हमारे पास, यहाँ पे 2 अननोन है, a1 और a, और इक्वेशन 2 बनेंगी ना। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2a इक्वल टू जी प्लस a1। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2g इक्वल टू a1 माइनस a। यहाँ पे a1 और माइनस a क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो g का डायरेक्शन है, जो इसका डायरेक्शन है, वही हमने पॉजिटिव लिया, तो 2g इक्वल टू a1 और माइनस a, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस 2g इक्वल टू g प्लस a हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3g, ये आ गया आंसर। ओके, मासलेस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो वो जरूरी नहीं होता है।
सर इस केस में हम डायरेक्टली लेंथ ऑफ लॉन्गर रोप इज इक्वल टू कांस्टेंट कर सकते थे ना, सिर्फ एक इक्वेशन बिल्कुल में काम खत्म हो जाता। मे बी नहीं, कहाँ, हाँ हो सकता था, उससे भी हो सकता था, राइट, कर सकते हैं उससे। L1 L2 L3 L4 4 सेक्शन बनेंगे। सर L2 और L1 तो इक्वल ही रहेंगे, तो फिर 2L1 ही ले सकते हैं ना। कौन सा L2 और L1? फर्स्ट मतलब जो मासलेस पुल है उसके दो ये और साइड ये, पे जो रोप से। ये हाँ और ये, हाँ राइट, ले सकते हैं। तो ये 4 सेक्शन है, ये दोनों इक्वल हो गए, चलेगा। और देखो टेंशन से भी सॉल्व नहीं हो पाता, टेंशन मेथड अगर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट टेंशन सिर्फ T लग रही है नीचे, और इस पर नेट टेंशन क्या लग रही है, 2T ऊपर है, तो उससे भी नहीं आता करेक्ट आंसर, क्योंकि टेंशन खुद यहाँ पे 0 हो रही है, तो 0 इंटू 0 तुमने 0 कर दिया, तो मतलब वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ये हो गया पुली का सरफेस कंस्ट्रेंट पे आपने अभी सीधे। तो ये तुम्हारा 60 डिग्री, 60 नहीं रखते, चलो अच्छी वाली वैल्यूज रखते हैं, 53 डिग्री, 37 डिग्री। यहाँ पर एक रोलर है, ठीक है, तो ये इधर जा रहा है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। फाइंड स्पीड, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो। सर इसका रूट में आ रहा है, रूट रूट 160। में चलेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकाला सीधे, और कंपोनेंट चाहिए मुझे, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएंगे, या जैसे भी तुमको कंपोनेंट बनाने हो बता सकते हो। तो कंपोनेंट तो फिर नॉर्मल टू वेज लिया, तो नॉर्मल टू वेज। नॉर्मल टू वेज, अच्छा अच्छा, एक का इधर लिया, तो एक का इधर लिया। हाँ, तो दोनों परपेंडिकुलर ही है। हाँ चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा, बेस्ट है। हमें हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो दे सकते हैं। ये V1, ये V2, तो V1 कितना हो जाएगा, 5 sin 53 है ना, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना आ जाएगा, 20 sin 37, यानी कि 12 12 आ जाएगा। 3/5 ना, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 144, 154, 160, रूट 160 हुआ ना। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो ये वेज और ये सिलेंडर के बीच में ये नॉर्मल कॉमन है, तो फाई का कंपोनेंट इधर जो होगा वही V1 के बराबर होगा। ऐसे ये नॉर्मल है, तो इधर V2 है, तो 20 का कंपोनेंट इधर V2 के बराबर।
बट हाँ यहाँ पे मैंने V1 V2 डायरेक्टली ले लिए क्योंकि ये V1 V2 दोनों 90 पे थे, तो अगर ये दोनों 90 पे नहीं होते तो ये मेथड नहीं लगा पाते हम। ओके ये हो गया। फिर ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा, यहाँ एक वेज बना हुआ है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। इसका मास 2m, इसका मास m है। ऑल सरफेस स्मूथ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक। ये वैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन देखा ही होगा, अथर्व को तो क्लास में ही करवाया ये क्वेश्चन। हाँ ये पीपी में था हमारे, सिमिलर है। अच्छा उसमें ओके। तो वेज फिक्स्ड है ना? 2m वाला वेज स्लाइड करेगा नीचे, हाँ, जो बड़ा वाला है वो नीचे वाला fixed है। वो फिक्स्ड। हाँ सर, दो केसेस बनेंगी, मतलब अगर थीटा 45 डिग्री से कम रहेगा तो फिर दोनों 3g साइन थीटा, मतलब सॉरी g साइन थीटा से नीचे आएंगे। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत हुआ। सर ब्लॉक का तो जी होगा। ब्लॉक का नहीं, सर 2m वाले वेज का 2g साइन थीटा है क्या? नहीं हो भी सकता है, नहीं देखना पड़ेगा उसका। बट 2g साइन थीटा मुश्किल लग रहा है मुझे चांसेस। तो मुझे ये आ रहा है, मतलब स्मॉल ब्लॉक का जी डाउनवर्ड्स है और इसका
जी साइन थीटा है। मुझे पॉसिबल तो नहीं है वैसे, चलो देख लेते हैं फिर भी। ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो हमें कौन सी फोर्सेस काम के हैं? इस पे mg नीचे, इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर, ठीक। इस पे 2mg साइन थीटा और ये नॉर्मल फोर्स, ओके। तो m का एक्सेलरेशन क्या होगा? mg माइनस n बाई m। इसका a1, इसका a2। तो m का एक्सेलरेशन आएगा mg माइनस n इक्वल टू m a1, ठीक। और जो 2m है उसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, तो क्या बनेगी? 2mg साइन थीटा प्लस n साइन थीटा इज इक्वल टू 2m a2। और हमारी तीसरी इक्वेशन कंस्ट्रेंट की क्या बनेगी? a2 साइन थीटा इज इक्वल टू a1 होगा along द कॉमन नॉर्मल। हाँ ठीक है, along द कॉमन वर्टिकल नॉर्मल। तो इसको सॉल्व करो, क्या आता है? पहली दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? मतलब उसमें से साइन थीटा अलग कर देते हैं। तो mg प्लस 2mg इज इक्वल टू ma1 प्लस 2ma2 बाय साइन थीटा होगा। इसमें मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया और दोनों को ऐड करने से n माइनस n कट जाएगा, ठीक है। तो 3g इज इक्वल टू a1 कितना है? a2 साइन थीटा प्लस 2a2 बाय साइन थीटा। तो a2 कितना आ गया हमारे पास? 3g साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया a2 और a2 आ गया, a1 भी आ जाएगा फिर, ओके। a1 हो जाएगा a2 इंटू साइन थीटा, तो वो भी आ गया। फाइन। अच्छा तुमने क्या बोला था? अच्छा थीटा की दो कंडीशन तुमने बताई ना, कि एक केस में g से गिरेगा हाँ ये, वो गलत तो हो वो गया था। इम्पॉसिबल है क्योंकि हाँ नॉर्मल फोर्स यहाँ पे हो नहीं रहा है। एक हाँ सिंपल लॉजिक ये सोचो, ये ब्लॉक m से तब गिर सकता है जब ये दोनों सेपरेट होने की टेंडेंसी बनाते हो। तो इसका इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन g बनेगा और इसका इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन g का कंपोनेंट हो सकता है बस। हाँ 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 ओके। तो फिर तो हमेशा ये ये वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा इससे नीचे फास्ट गिरेगा। जा ही नहीं सकता। हाँ हम्म ओके, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला कि इसका g नहीं आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो ये हो हाँ गया तुम्हारा। और बाकी ये तो क्वेश्चन क्लासिक है, तुम लोगों को आता होगा कि वेज है, वेज पे ब्लॉक रखा है, स्मूथ ग्राउंड है, थीटा एंगल है, छोड़ दिया, सब कुछ स्मूथ है, तो क्या एक्सेलरेशन बनेंगे, है ना। तो तुम लोगों को आते ही है। और क्या बनता है? वो सर हेमिस्फीयर वाला, आई मीन सेमी क्या हेमिस्फीयर सर्कुलर वाला? इसी का वर्जन, मतलब ऐसा ही पर अच्छा सेमी सर्कल में छोड़ दिया था। हाँ, तो कब कांटेक्ट छोड़ेगा वगैरह, राइट। हाँ वो वाला। वो भी है, अच्छा ठीक है, वो हो गया। और बाकी एक क्वेश्चन तो ये बनते हैं इस टाइप की, ये कैटेगरी के, कि यहाँ पे एक ट्यूब है, ट्यूब में से एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा वेज है। तो इसका मास m1, इसका मास m2, ये कैसे कंस्ट्रेंट बनाएंगे? ये तो देखा होगा क्वेश्चन। इसका एक्सेलरेशन नीचे a1, इसका एक्सेलरेशन इधर a2, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल एक्सेलरेशन कंपोनेंट इक्वल कर दो, राइट। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा। फिर एक क्रोटो का क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, वो देखते हैं। यहाँ पे एक रिंग है,
इसी की डुप्लीकेट रिंग है, ठीक है। और इन दोनों को यहाँ पे एक रिंग ने कंस्ट्रेंट में डाला हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं कि एक तो बोला कि इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो रिंग की वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको छोड़ दिया ग्राउंड पे, स्मूथ ग्राउंड पे, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास अलग से कुछ m डैश ले लिया, तो ये नीचे गिरेगा, तब रिंग के एक्सेलरेशन क्या होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो जो डिफिकल्ट वाला है वो ज्यादा ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 2m है, इनको रखा है हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड पे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है हमें कि ये रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, ठीक है। और दोनों के सेंटर के बीच का रेडियस भी अभी फिलहाल r है, डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन। किसी का भी एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी कि अलोंग द रेडियस रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा अगर ओमेगा 0 है, और यहाँ पे इनिशियली ओमेगा 0 है, रिलेटिव ओमेगा मतलब। सिमेट्री होगी, इसका एक्सेलरेशन a1 होगा रिंग्स का हॉरिजॉन्टल में, और छोटी रिंग का a2 होगा वर्टिकल में, ठीक है। सर 1 मिनट रुकेंगे क्या? हम्म
सर उसका A2 वर्टिकल कैसे होगा? A2 वर्टिकल कैसे होगा? सिमेट्री, दोनों डायरेक्शन बट सेम है। नहीं, वो जैसे वो दोनों रिंग्स को सर्कल कर रहा है ना, रिंग। हाँ, तो तो दोनों रिंग पे सिमेट्रिक फोर्स लगा रहा है वो, हाँ, तो दोनों रिंग उस पर सिमेट्रिक फोर्स लगाएंगी, तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे। और फोर्स हॉरिजॉन्टली थोड़ी लगेंगे। देखो इधर से नॉर्मल फोर्स, इधर से नॉर्मल फोर्स लगेगा कुछ, हाँ तो ये दोनों नॉर्मल फोर्स इक्वल होंगे, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे। हाँ हाँ। सर ये A2 मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन स्मॉल m का mg/1 + 2 tan स्क्वायर 60 आएगा क्या? A2 इक्वल टू mg/1 + 2 tan स्क्वायर 60, मतलब 1 + 6 7। ठीक है, देखते हैं। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन जो होगा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा 60, राइट। तो अलोंग द नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल, जो कि ये डायरेक्शन है, A2 का कंपोनेंट क्या आएगा, A2 cos 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका ये वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री है। ये तुम्हारा इक्वल ट्रायंगल, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल 60 है, तो A2 का ये एंगल से कितना आएगा 30 आएगा, ठीक, इक्वल टू। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से 60 होगा, तो A1 का कंपोनेंट कितना आएगा, A1 cos 60, तो हमें क्या मिला, A2√3 इक्वल टू A1 मिल गया। ये इक्वेशन बन गई पहली। अब दूसरी इक्वेशन हमें क्या बनानी है, रिंग की और इसकी सेपरेट बनानी है। तो रिंग को ले लेते हैं और ये छोटी रिंग को भी ले लेते हैं। छोटी रिंग को चलो ऐसी बना लेंगे। तो छोटी रिंग जो है उस पर यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स और नीचे लग रहा है mg, और जो बड़ी रिंग है यहाँ नॉर्मल फोर्स लगा सेम n लगा, एक्शन रिएक्शन, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है 60 डिग्री, है ना। तो n cos 60 इज इक्वल टू 2m A1, ओके। और रिंग के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, mg - 2n इक्वल टू m A2 होगा, mg माइनस सॉरी 2n sin 60 इज इक्वल टू m A2। तो यहाँ से n कितना आया हमारे पास, n विल बी 4m A1। तो इधर कंटिन्यू करते हैं, तो mg - 4m A1 होगा, तो 8m A1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू m A2, ओके। तो g - 4√3, A1 क्या है, A2√3 इज इक्वल टू A2। तो g इक्वल टू कितना हुआ ये, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13 A2, और थर्ड ने क्या दिया, A2 इक्वल टू mg/m। कहाँ से आ गया था, m तो कट जाएगा ना। सर मैंने ये भी गलती की कि वो बड़ी वाली रिंग का मास m ले लिया इंस्टेड ऑफ 2m। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो A2 हमें मिल गया G/13, A2 मिल गया, A1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, इसको हटा देते हैं। फाइन, सर आया समझ? हाँ सर वो जो दो रिंग का छोटे रिंग को ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, देखो कांटेक्ट में हमेशा नॉर्मल फोर्स लगता है, एक दूसरे की ग्रेविटी नहीं लगा सकते हम। ओके, दोनों रिंग अच्छा सिर्फ हाँ नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। ग्रेविटी इसको अलग से पुल कर रही है, दूसरी रिंग को अलग से पुल कर रही है, उसको अलग से mg तो लगा ही रही है। ठीक, हाँ ओके ओके सर। और इस पे mg भी है और ग्राउंड से भी नॉर्मल फोर्स है, जिनका हमें कोई काम नहीं है, इसे मैंने बनाया नहीं है। ओके, हाँ 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 वो समझा सर, सिर्फ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का थोड़ा डाउट था। अच्छा, म्यूचुअल ग्रेविटी वो यहाँ पे नहीं ले रहा है, वो नेग्लिजिबल ले रहा है। ओके ओके सर, ठीक है फिर। ठीक है, हाँ और कुछ डाउट किसी को? चलो, तो ये लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया बेसिकली। कुछ आई थिंक है तो नहीं, मोस्टली कंस्ट्रेंट ही रहता है लॉज ऑफ मोशन का, जो डिफिकल्ट रहता है वो कर दिया हमने। पुलिस वाले हो सर गए। फ्रिक्शन वाले हाँ प्रॉब्लम्स? हाँ, फ्रिक्शन वो सेपरेटली करेंगे। फ्रिक्शन आई गेस 1 आवर में हो जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। और फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं तुमको और कुछ बता रहा हूँ आगे का शेड्यूल, अगर आज शाम का बना तो कितने बजे रहेगा? ठीक। सर मेरी एक डाउट थी। हाँ, सर वो पाथफाइंडर में NLM का 21 पेज नंबर पता है क्या? 2.8 2.8 का 21 between two blocks in place close to the foot is not frictionless. अच्छा, the end of the rod is pulled horizontally by a gradual increasing force F. This block will start sliding first. दो कंडीशन बन सकती हैं, रॉड मासलेस है या मासलेस नहीं है। अगर मासलेस नहीं है तो रोटेशनल टॉर्क भी बैलेंस करनी पड़ेगी, बट इसने बिना टॉर्क की किया होगा, क्योंकि नॉर्मल मतलब लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। सर आंसर ब्लॉक ए होगा ना? क्यों? सर रॉड राइट साइड रोटेट करेगी, तो जो बी पे जो फोर्स लगेगा वो टिल्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड होगा, तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी पर तो उस रॉड वर्टिकल है इंस्टेंट ना। में तो हॉरिजॉन्टल लगेगा ना, मतलब इस जब मोमेंट पे स्टार्ट अभी रॉड, हाँ नहीं नहीं, स्टार्टिंग सर, पर वो पूछ रहे हैं ना, जब मोशन स्टार्ट होगा वो फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज पहले करेगा। किस में स्टार्ट होगा, पहले किस में स्टार्ट होगा हाँ वो पूछना है। हाँ, तो अभी रॉड वर्टिकल ही लेनी है, रॉड जरा सा भी टिल्ट नहीं है रॉड में। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये हो जाता, ऐसा होगा तो मतलब अगर रॉड टिल्ट हो रही है, हाँ, थोड़ा फिर तो गैप बोल है सकते उसके थे। बीच में, फिर यस, ए बोल सकते थे। हाँ, बट यहाँ पे परफेक्ट वो मानना है कि टिल्ट नहीं है। तो फिर तो मतलब दोनों साथ में ही होंगे ना शायद। नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्टली मतलब हम सोच नहीं सकते, इसमें वही चीज है। ये बुक ऐसी है, तुम्हारा फर्स्ट इंट्यूशन मतलब हमेशा गड़बड़ कर देती है। क्या होगा इसमें? चलो देखो, एक चीज तो पहले कर लेते हैं कि ए ब्लॉक पे नीचे फोर्स आएगा, बी ब्लॉक पे ऊपर फोर्स आएगा, और रॉड पे ये हमारी एफ है, तो ये F1 और ये F2।
अब रॉड की हाइट भी नहीं दी हुई है, तो F प्लस F2 इज इक्वल टू F1। तो यहाँ पे हाँ ओके, F1 जो है F2 से ज्यादा है, हाँ हाँ यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, तो इस पे ज्यादा फोर्स है, वो पहले मूव करेगा। अच्छा ओके 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 ओके। ठीक है। मतलब पर ये तब पॉसिबल था अगर रॉड मासलेस थी तभी ना। नहीं, मास हो तब भी ना, देखो रॉड में मास है बट रॉड में नेट फोर्स तो जीरो करना है ना। अच्छा हाँ ओके। तो ये फिर इक्वेशन नहीं, बननी पर बननी जब है। मोशन स्टार्ट होगी तो फिर एक्सेलरेशन आ सकता है ना। फिर हाँ, फिर वो कंडीशन क्या बनेगी, मतलब जैसे ही ये मोशन स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, रॉड टिल्ट हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि ये रुक जाए थोड़ा आगे जाके, और फिर ये लीवर सिस्टम बन जाएगा, तो इसको ज्यादा फोर्स मिल जाएगा, ये हो सकता है फिर आगे बढ़ जाए। तो t इक्वल टू 0 के बाद क्या होगा नहीं बोल सकते, बट या इनिशियली ये है। t इक्वल टू 0 के बाद तो इसकी भी रोटेशनल मोशन हमें स्टडी करना पड़ेगा, कैसे टॉर्क बन रही है। हाँ सर, और यहाँ पे b उसी चैप्टर में 38 मतलब 2.12 पे, ये मतलब कुछ ज्यादा ही टफ है। 38, अच्छा हाँ, ये मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ इसमें, मैं मतलब मेन मेरा डाउट इसमें क्या है ना, कि इसका देखो मैं इसमें कहाँ पे फंसा हुआ हूँ कि ये मैंने दो टेंजेंट ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं या यहाँ पे मैं एक पैराबोला बनाऊं, किसकी लेंथ कम है? जिसकी लेंथ कम होगी वो कम टाइम लेगा, सिंपल है। और कंडीशन उसमें क्या है, सर वो क्यों? कंडीशन उसमें क्या, हाँ वो क्यों मतलब कम टाइम देखो क्यों देखो इसमें लेगा क्या वो? बोला है, फास्टेस्ट वन ऑन दिस पेवमेंट कौन सा होगा, फास्टेस्ट टर्निंग किसमें होगी वो पूछा है, जिसका डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि स्पीड सर कांस्टेंट है। ऐसे हमेशा तो नहीं। अच्छा ओके ओके, स्पीड कांस्टेंट रखे हो। स्पीड सर अगर कांस्टेंट है तो स्पीड लेंथ, कांस्टेंट रहेगी, सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो फिर फ्रिक्शन भी तो कांस्टेंट, मतलब ये आउटवर्डली इसमें ये भी कांस्टेंट इसमें रहेगा। रहेगा कांस्टेंट, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैक्सिमम इधर होगा, वर्टेक्स पे। ओके, मतलब वो चेंज होता रह रहा है इसलिए हाँ, तो रेडियस। इसमें तुम्हें हाँ यस कंपेयर ये करना है कि इसका तुम मिनिमम रेडियस क्या बनेगा, इसका मिनिमम रेडियस क्या बनेगा कि तुम्हारा v स्क्वायर बाय आर इक्वल टू म्यू जी, सर्कल का तो हाँ फिक्स है ना। और यहाँ पे जो होगा पैराबोला में, ये मिनिमम रेडियस आएगा तुम्हारा आर मिनिमम इक्वल टू मतलब v स्क्वायर बाय म्यू जी रहेगा। तो मेरा फर्स्ट इंट्यूशन क्या था कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इधर तुम मैक्सिमम टर्निंग एक्सेलरेशन ले सकते हो सेंट्रीपिटल, बाकी जगह कहीं पे भी मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं ले सकते, हाँ तो मुझे लगा कि इसका लेंथ ज्यादा होगा, बट आंसर में बोला कि पैराबोला होगा, तो मैं वो हाँ कंफ्यूज हूँ वही। कैसे करेंगे उसको। तो मेरी बस ये रिलेशन अभी तक बन पाया है, इससे ऊपर मैं कुछ सोच नहीं पाया हूँ। ओके ओके ठीक है, ओके। और कुछ हाँ, तो समीर अब जो डाउट सेशन तुम्हारा होगा, मतलब वो मोस्टली तुम्हारे वाले क्वेश्चन एक फिनिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारा वो काफी लंबी पेंडिंग लिस्ट हो गई है ना। हाँ हाँ। तो तो इनको हम मैं यही बोल रहा हाँ था, मतलब जो मेरे जो डाउट्स हैं ना, तो हाँ हाँ जैसे मैं क्या कर रहा था, सब्जेक्ट वाइज जा रहा था, तो अभी मेरा फिजिक्स चल रहा था। हम्म तो अगर मेरे फिजिक्स के ये डाउट्स क्लियर होंगे ना, अभी थोड़े रिव्यू बुकलेट्स के भी डाउट्स मैं भेज दूंगा। रिव्यू बुकलेट और जीएमपी के अगर डाउट्स क्लियर हो गए, फिर मैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे जंप कर रहा हूँ, तो फिर फिजिक्स में मेरे डाउट्स इतने नहीं रहेंगे। अच्छा। तो मतलब तो अभी तुम्हारे अभी ही पेंडिंग मतलब है। नहीं, देखो एक चीज मैं बोलूंगा, ये तुम सब्जेक्ट वाइज मत करो, एक सब्जेक्ट सिर्फ पकड़ा देन दूसरा पकड़ा, वो ऐसा मत करो, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, तुम कंटिन्यू 2 हफ्ते सिर्फ एक सब्जेक्ट के टच में हो, सपोज नहीं को अभी नहीं तुमने सब फिजिक्स मतलब, लिया। हाँ नहीं हमारे पेपर्स भी हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, मेरे को वीक में 6 पेपर्स हो रहे हैं एडवांस के, मतलब। ओके ओके तो पेपर्स के साथ हर चीज हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पे एम कर रहा हूँ, उसमें स्कोर ज्यादा इम्प्रूव, तो इसीलिए सब्जेक्ट वाइज जा रहा हूँ, अपनी अब प्रैक्टिस ओके, जो कर रहा हूँ। ठीक 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 है, चलेगा। तो हाँ मतलब ये तुम्हारा, देखो एक चीज करो, तुम्हारा डाउट सपोज को पूरे फिनिश नहीं भी हो पाए, क्योंकि डाउट लिस्ट लंबी है,
तो हाँ। कोई कोई क्वेश्चन हम फंस भी जा रहे हैं तो वो कब फिनिश होंगे बोल नहीं पा रहे हैं ना। तो हाँ। तुमने खुद से जब बुक खत्म कर दी एक्सेप्ट फॉर डाउट्स, हाँ। हाँ। तो केमिस्ट्री में जंप कर लो ना। हाँ वो तो मैं करूँगा ऐसा, वो मना नहीं कर रहा हूँ। हम्म बस ये है कि हम्म मतलब डाउट्स पेंडिंग, क्योंकि सर फिर पेपर्स भी करता हूँ तो पेपर्स के भी बहुत डाउट्स पेंडिंग है। नहीं नहीं, वो तुम्हारे दोनों मिला के खत्म कर रहे हैं। तो तुमको पहले कौन सा हाँ। करना है, बुक्स का फिनिश करना है डाउट पहले या नहीं पेपर का पहले साथ तो में बुक्स चलाना ही है? सर, नहीं पहले चलो बुक्स ठीक ही है। जो मैंने आपको ठीक है, भेजे तो हैं आप वो। फिर सीधे टारगेट बुक्स के ही रखते हैं, वो खत्म हो जाएगा देन पेपर के डाउट्स करेंगे, ठीक? हाँ। हाँ ठीक है। चलेगा। ठीक है, एंड करें इसको। हाँ सर। ओके।